वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है जब इंडिया में, तो आप उसके बारे में क्या सोचती है? इज वुमेन सेफ एंड एम्पावर्ड? अगर हम इंडिया की बात करें तो ना तो यहाँ वुमेन सेफ है, ना ही एम्पावर्ड है। अगर हम सेफ होते तो शायद वो कोलकाता केस नहीं होता। बोला जाता है कि लड़की तो पंछियों की तरह होती है, पक्षी होते हैं। पक्षियों का तो घर कभी होता ही नहीं ना, उनको तो हर बार अपना घोंसला मेहनत करके खुद ही बनाना पड़ता है। जब आप अकेले होते हो ना और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप बहुत समझदार बन जाते हो। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारी इस नई पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम आपको एक ऐसी इन्फ्लुएंसर से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने बच्चे की परवरिश के साथ ही साथ क्रिएटिविटी, वेलनेस और लाइफस्टाइल के लिए लोगों को इंस्पायर करती हैं। इनकी टिप्स और ट्रिक्स इतनी ज्यादा असरदायक हैं कि लोग तो इनके फैन ही हो गए हैं, एंड आई एम श्योर कि आप भी जरूर हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं मिस श्री सुखीजा से। हाय मैम, वेलकम टू केजेड टॉक्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। सेम मैम, हियर। आप कुछ बताना चाहें अपने बारे में हमारे लिसनर्स को? या माय नेम इज शिप्रा सुखीजा। बट अगर ऑनलाइन बात की जाए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरा नाम है श्री सुखीजा। अब ये श्री नाम कहाँ से आया? आई एम अ डाई हार्ट श्री देवी फैन। तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शिप्रा रख दिया बट मैंने अपना नाम श्री रख दिया। बट ओके। द स्पेलिंग फॉर श्री इज SHREE। एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई वाज born in Allahabad, brought up in Delhi, and my son is 8 years old. I started my career as a professional trainer. I worked with corporates for say 9 long years, and Okay. it's been almost 4 years that I'm working as an influencer. So what inspired you to shift from corporate to influencing? I mean, corporate is altogether a different life, Yeah. and I mean, I was at the peak of my career. I was working as a trainer, pan India trainer, training catering engineering colleges, Okay. and delivering communication skills over there. But then I got married, and I had a son, and then things happened. So certainly, I had to give more priority to my family life, my son. So I could not manage between those long working hours, because being a trainer, I mean, even if you are delivering like 8 hours of work in your Yeah. college or in your office, after that as well, you have to be very creative. Yeah. You have to come up with new ideas, new technology, and new things. So I thought that I should work on something else, a parallel line. And I was always very fond of getting clicked, and I'm very creative, to be honest with you. Maybe it would reflect through my page. Yeah. So I thought that I can try. And I already had a page on my Instagram, and I used to mimic, and I used to come and share my thoughts. So one day I thought that let me try. I mean, I can do something Yeah. in this field. So I still remember the first collaboration I did on Instagram was through a friend, and it was for Mother's Purse. I mean, it was a Okay. renowned brand like three and a Yes. half years back. It was a barter campaign, and to be honest with you, I was a layman. मुझे नहीं पता था barter क्या होता है, paid क्या होता है. I was so happy with the fact that I got few, skincare products free of cost. And what I need to do is I need to use them and give a review. And I was like so happy. And this is what I really wanted to do as well. So I did that. And like 2 months down the line, I got a paid collab with the Catch Masala. I was Wow. like so happy. Yes. There was this app called Momspresso, which is Okay. particularly for moms. I mean, moms who wants to earn money, and at the same time they have to take care of their house and their kids. So this app was for moms, Okay. and luckily I was a part of it. But then this app is no more active. It's been 2 years now. But then I got my first paid collab through Momspresso. It was Catch Masala, and yeah, I had great time shooting for that video, and that's how it started. ओके। सो आपने दोनों सेक्टर्स में काम किया, लाइक कॉर्पोरेट आल्सो एंड नाउ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या लगा? आई थिंक डिफरेंस की अगर बात करें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आई मीन, ये दोनों दो अलग अलग पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, या। कॉर्पोरेट लाइफ एंड देन यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। आई थॉट दैट कॉर्पोरेट लाइफ इज डिफरेंट देन इन्फ्लुएंसिंग। आई थॉट सो। बट देन ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट में लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, या। आपको आपको बैक स्टैप करते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं, वो दे आर नॉट हैप्पी सीइंग यू राइजिंग अप।
Similarly, influencing is also like that. I Okay. mean, your But fellow. it's better than 9 to 5, I guess. नो आई थिंक इट्स सेम आई मीन अगर Okay. आप कॉर्पोरेट में जाते हो आप 9 to 5 जॉब करते हो उसके बाद भी इफ दे गिव यू अ टास्क यू हैव टू डू इट यू कांट से दैट यू नो द टाइम और द शिफ्ट इज अप Yeah. similarly if you talk about content creation even if you are sitting you know your mind is running you have to be very creative you always have to come up with new ideas for example if you are an influencer and you are endorsing a face wash for a brand certainly you have to endorse a face wash for a different brand as well so you cannot show the same you know routine or the same you cannot follow the same pattern Yeah. once again क्योंकि फेस वॉश में तो अल्टीमेटली आपको वो फेस वॉश निकाल के फेस धोना है Hmm. बट हाउ यू एग्जीक्यूट इट एवरी टाइम दैट डिपेंड्स सो Yeah. क्रिएटिविटी तो 24/7 है सो आई मीन Yes. इट्स सेम द वर्किंग आवर्स इन Okay. बोथ द प्रोफेशंस Okay. बट प्रेशर में थोड़ा सा होता होगा हाँ लीनियंसी. प्रेशर में फर्क फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है Okay. बट यस वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट you have to get up like 7 o'clock you have to follow a strict routine you cannot be that flexible that you'll go late and your you know salary Yeah. will not be Yeah. deducted nothing is like that in influencing you have a lot of flexibility and you are free to create it's like Okay. uh, sky is the limit Yeah. मैम आपने अभी मेंशन किया था दैट यू आर अ सिंगल पेरेंट. सो आपने काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस किए होंगे इसके लिए, तो आप कुछ शेयर करना चाहें? challenges या सबसे बिगेस्ट चैलेंज मुझे जो लगता है ना वो ये है बीइंग अ सिंगल पेरेंट दैट यू नो आप अपने बच्चे की फिजिकल एजुकेशनल इमोशनल रिक्वायरमेंट्स आई मीन एंड यू नो बैलेंसिंग योर Yeah. पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एट टाइम्स बिकम वेरी वेरी डिमांडिंग Yeah. सो दैट्स द थिंग बट येस आई एम वर्किंग ऑन इट और मुझे एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया इस आई मीन इट हैपेंड विद मी 2 weeks बैक मैं अपने बेटे का पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए गई गवर्नमेंट ऑफिस में Okay. आई मीन दैट्स द पासपोर्ट सेवा Yeah. केंद्र एंड आई वाज अमेज्ड पासपोर्ट बन चुका है सिर्फ रिन्यूअल होना है तो पासपोर्ट पे फादर्स नेम है नहीं क्योंकि जब मैंने बनवाया आई टोल्ड देम दैट यू नो द फादर इज नॉट देयर वी आर सेपरेटेड and I don't want the name on his passport. Yeah. So I did all the formalities that time and it was required. और बच्चों का पासपोर्ट 5 साल के लिए बनता है बड़ों का 10 साल के लिए बनता है Yeah. आफ्टर 10 years it get renewed Renew. तो 5 years हो चुके थे तो अब when I went this time for the renewal I had to answer each and every department for this thing as to why the name is not there and why I don't want it and then for the last call, they made me sit telling me that you are a special case. I said, seriously, Okay. I'm a special case. Why? They had no answer. They made me wait for 2.5 hours. Then I had to meet some, departmental head. And he told me, you're a special case. I said, why I am a special case? मैंने कुछ गलती की है? If I am separated and I don't have his name. कह रहा नहीं आपको डिलीशन कराना है ना नाम का इस वजह से आपको जो है आप एक स्पेशल केस हो मैंने कहा डिलीट क्या कराना है नाम तो है ही नहीं पासपोर्ट पे Yeah. तो ही सेड नो डिलीट करना है ना इसलिए नाउ यू हैव टू गो टू यू नो द बेस ऑफिस व्हिच इज समवेयर इन आरके पुरम Yeah. and I have to go through the whole process once again which I really felt it was not required because once it was done it was just for renewal it Yeah. was not in the process of making a new passport then why so I mean that was रियली स्ट्रेंज एंड वेरी डिसहार्टनिंग वैसे Yeah. हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं सॉरी टू से दैट आई एम एन इंडियन आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन बट जब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है Yeah. सोसाइटी ने फिर आपको सिंगल पेरेंट के रूप में एक्सेप्ट किया या आपको क्या डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि लोग ये चीज बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं पहले बहुत सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचते हैं मुझे बहुत फर्क पड़ता था या. कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो वो सोचेंगे कि अरे ये तो एक सिंगल पेरेंट है ये तो कैसे कपड़े पहन रही है वो मेरे को जज करेंगे हर चीज के लिए तो शुरू में बहुत डिफिकल्ट था और क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाला वही सोच रहा होगा बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि लोगों का काम तो है कहना लोग तो एग्जैक्टली. कहेंगे कुछ ना कुछ आप कुछ भी कर लो आप लोगों को खुश नहीं रख सकते तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे को ये
टाइम लगा समझने में, बट लाइक 2-3 इयर्स लगे मुझे समझने में, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा बेटा है, मुझे इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करानी है, मुझे स्कूल लेके जाना है, मुझे इसको बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व करना है जहाँ जहाँ उसका इंटरेस्ट हो। Yeah. तो आई एम हिज फादर एंड आई एम हिज मदर, तो आई हैव टू बी एज बोल्ड एज अ मैन। तो यस, डिफिकल्टी आती है, अभी भी आ रही है, बट ठीक है, इट्स मैनेजेबल नाउ। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ मैन, एंड आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई सन। वंस यू बिकम अ पेरेंट, आई थिंक वो अंदर से आपके अंदर एक एनर्जी या एक लाइटमेंट आ जाती है, एनलाइटमेंट से आ जाती है आपकी लाइफ में कि सब ठीक होगा। और ये सोचना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स ऑल इन योर माइंड दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अगर आप ये पहले ही सोच लोगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, आई स्वेयर आप ये नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज होती है। Yes. लोगों को ना ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, बट इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स। आप एक बारी ये सोचना, आप रात को सोने से पहले, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आज तो मेरा दिन बहुत खराब गया, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या होता है, जब आपके दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप सोने चले गए, आप अपने बेड पर हो, तो क्या होता है, 5 से 4 घंटे के बाद जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो इस सारे थॉट्स को असेंबल करता है, और वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इंश्योर करता है कि ये सारी चीजें मैं आपकी लाइफ में करूं, Yes. और वो उन Happens. सबको एक्टिवेट कर देता है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो सारी बातें जो होती है ना। और फिर आप देखिएगा हफ्ते भर में उसके रिजल्ट्स, जो जो आपने सोचा था, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस तो रोज रात को वही रहने वाला है ना। Yes. तो यही होगा। तो मैं आई विल एडवाइज एवरीवन, थिंक पॉजिटिव। आई नो इट इज वेरी इजी टू से एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बट देन मैं अपनी लाइफ से बोल रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि जब मैं गलत सोचती थी, कहते हैं ना कि द वे यू सी योर लाइफ और द वे यू सी द वर्ल्ड। अगर आप कह रहे हो आसमान ब्लू है, तो आप मानो कि वो ब्लू ही है। अगर वाटर वाटर एवरीवेयर है Yeah. बट नो वाटर टू ड्रिंक, कहते हैं ना, तो वो इसलिए कहते हैं कि आप वो उस पानी में नहा सकते हो, उसमें बर्तन धो सकते हो, बट उसको पी नहीं सकते। तो वही चीज है, जैसे आप दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया वैसे ही लगेगी और Yeah. वैसे ही दिखेगी। तो मैम आप लाइफ के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब डू यू फाइंड कि लाइफ खूबसूरत है? क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ से निराश होके बहुत ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आप क्या सोचती हैं? हाउ इज लाइफ? Life, it's a very complicated word for lot of people, but मैं ये बोलूंगी कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। देखो, लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए, पर पैसे से ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो है हिम्मत। या हिम्मत होनी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना टुवर्ड्स योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि सबकी सुनते हैं, और भगवान खुश होते हैं अगर हम उनके लिए फास्ट करते हैं या उपवास रखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फास्ट रखने से भगवान खुश होते, तो गरीब लोग तो बहुत अमीर होते हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको तो 3-3 4-4 दिन खाना नहीं मिलता ना। तो वो अमीर क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप प्लीज कर सकते हो, या ड्रामा कर सकते हो लोगों के आगे, बट भगवान के आगे आप नहीं कर सकते हो। एट द उनको तो सेम सब पता टाइम, है। हाँ, उनको सब पता है। आप उनको आप याद करो, ही विल बी देयर, एंड वो आपकी उससे नहीं होगा। जैसे बड़े अमीर लोग होते जाते, सोना चढ़ा दिया, या रोज 100 रुपए दान में दे दिए। भगवान इज सीइंग दिस, बट ही विल नॉट बी इम्प्रेस, ही विल बी इम्प्रेस बाय योर एक्शंस, बाय योर थॉट प्रोसेस। तो लाइफ बहुत खूबसूरत है। देखो, अगर हम एक बुक पढ़ते हैं, बुक में कुछ चैप्टर्स आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं हम बुक को बंद करके कभी उस बुक को उठाएंगे नहीं। हाँ, या थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, बट फिर हम बुक उठा लेंगे। लाइफ आपकी एक चैप्टर, एक बुक की तरह, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ आसान है, ठीक है। बट एक बार जब आप अपने मन में सोच लोगे ना कि ये जो चैप्टर है या जो ये बुक है ना, मैं इसका राइटर खुद हूँ, आप अपने चैप्टर्स खुद लिखो, पढ़ लो। समझ में नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन ढूंढो, सिंप्लीफाई करो। भाई, पेन आपके हाथ में है, बुक भी आपके हाथ में है। यू आर दी ऑथर ऑफ योर ओन बुक। व्हाई यस। डोंट यू गो अहेड एंड राइट इट, डूड? लिखो उसको।
सब अच्छा होगा। तो आई मीन लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पैसा चाहिए, ज़रूरी है, तो काम कर लो कुछ, ऑप्शंस हैं बहुत सारे या अवेलेबल। आपने बहुत ही अच्छे से लाइफ की डेफिनेशन बताई, आई थैंक यू। गेस लोगों को काफी पसंद आया होगा। सो मैम, आप लाइफ को बैलेंस कैसे करती है, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, और जैसे आप एक पेरेंट हैं और आपके पास और भी चीजें होती हैं, एक होम बेकर होता है इंसान, तो आप कैसे बैलेंस करती हैं सारी चीजों को? गुड क्वेश्चन। बैलेंस करना देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, या बट येस मुझे लगता है कि बैलेंस आप कर सकते हो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके। आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लो कि ये काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है तो आप उसको सेकंड, थर्ड कैटेगराइज़ कर सकते हो, पहली बात। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेक श्योर कि आप जो भी काम करते हो अपनी अर्निंग के लिए, आप उसके लिए डेडिकेटेड 3 घंटे, 4 घंटे रख दो कि मुझे 4 घंटे में काम कंप्लीट करना है और बाकी का टाइम मेरे को अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स को देना या है। तो आई मीन येस, इट कम्स विथ लॉट ऑफ डिसिप्लिन and consistency, but yes it works at the end of the day. सो मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है जब इंडिया में, तो आप उसके बारे में क्या सोचती है? इज वुमेन सेफ एंड एम्पावर्ड इन इंडिया? देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो ना तो यहाँ वुमेन सेफ है, ना ही एम्पावर्ड है। हम कितने भी आगे चले जाएं, अगर हम सेफ होते तो शायद वो कोलकाता केस नहीं होता। और कितने केसेस हैं जो तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं क्योंकि हमें अपनी झूठी इज्जत और झूठी शान की बहुत परवाह होती है। हम ये सोचते हैं सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो ये गलत है। या सोसाइटी हमको खाना नहीं देती, सोसाइटी हमारे दुख में नहीं है, सोसाइटी को नहीं पता हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम सोसाइटी की इतनी परवाह क्यों करते हैं, पहली बात। और सोसाइटी का तो काम ही है बोलना। शादी में आप बहुत लोगों को बुलाते हो, बहुत पैसा खर्च करते हो, फिर भी 100 में से 80 लोग यही बोलते हैं खाना बेकार था, पर आपने तो बेस्ट शेफ करा था, बहुत पैसे खर्चे थे। तो सोसाइटी का काम तो है बोलना, वो बोलेगी ही। सेफ की बात थी ये। और एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट कहाँ होगा? उस देश की औरत कैसी एम्पावरमेंट एम्पावर हो सकती है जहाँ की औरत सेफ ही नहीं है अपने खुद के घर में? आई मीन आई हैव हर्ड सो मच। आई विल नॉट डिस्क्लोज हियर बट आई हैव अ फ्रेंड, शी इज मैरिड। वो मतलब जैसे कहते हैं ना मायके की साइड से इतनी या पैसों को लेके पावरफुल नहीं हम्म है। एंड once she told me that her father-in-law was all alone and he tried on और her and when she cried and she told her husband, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं पापा से बात करूंगा। एंड स्टिल शी इज लिविंग इन दैट हाउस, इट्स बीइंग 16 years शी इज मैरिड और उसका बेटा आज कुछ ऑलमोस्ट 10 साल का है, बट शी इज लिविंग इन द सेम हाउस विद द इन-लॉज एंड her mother-in-law is not there। और उसके हस्बैंड काम पे जाते हैं, वो अपने फादर इन लॉ के साथ घर में अकेली होती है रोज, एवरी डे। एंड शी सेज नहीं उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर मेरे को डर लगता है हमेशा। एग्जैक्टली, एंड बिकॉज शी इट इज इज नॉट नॉट वोकल सेफ। अबाउट इट, या क्योंकि वो कहती है कि मैं अगर मैंने कोई स्टेप ले लिया तो मैं जाके क्या करूंगी, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मैं जॉब भी नहीं कर सकती और मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो हमारे देश में ये होता है, कितनी बार जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो सिर्फ ये सब कुछ सहन करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर अपने माँ बाप के घर चलेगी तो उनके भाई बहन की शादी नहीं होगी, या सोसाइटी, वही बात आ गई ना फिर से, सोसाइटी क्या सोचेगी। सोसाइटी के मन में तो ये है कि लड़की पराया धन है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लड़की एक पराया धन है। चलो वो पराया धन हो गई, अपना घर जो है उसका, वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो पराया धन है। और जब वो अपने धन वाले घर में जाती है, वहां जाके इन लॉज में वो बोलते हैं तो ये तो हमारे घर की नहीं है, ये तो दूसरे घर से आई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तो उसके पास तो कोई घर ही नहीं है ना। अगर आप लड़की की बात करें, आप बहुत बार ही बोला जाता है, बहुत कविताओं में हिंदी में सुनती आ रही हूँ मैं, बोला जाता है कि लड़की तो पंछियों की तरह होती है, पक्षी होते हैं। तो पक्षियों का तो घर कभी होता ही नहीं ना, उनको तो हर बार अपना घोंसला मेहनत करके खुद ही बनाना पड़ता है। तो टिल हर लास्ट ब्रेथ उनका तो कोई घर है ही नहीं ना। आपने काफी अच्छे से समझाया इस चीज को। तो मैम, अब पेरेंटिंग पे आते हैं, तो आजकल के जमाने में मतलब एक हाई टाइम हो गया है, तो टेक्नोलॉजी तो हर ही जगह है। तो एज अ पेरेंट आप बाउंड्रीज कैसे सेट करती हैं, स्क्रीन टाइम को लेके और भी चीजों को लेके? I think technology plays a very important role in the life of a parent because technology is a very good source of learning as well as entertainment. But कहते हैं ना excess of everything is bad. तो अगर हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूज करेंगे तो certainly it can bring bad effects. तो आई मेक श्योर कि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड है।
मतलब आई एंश्योर कि वो 2 घंटे अपना टैब या अपनी फ़ोन या टीवी देखे। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो 30-30 मिनट्स करके देखना चाहे या 1 आवर, बट आई एंश्योर कि वो 1 गो में 2 आवर्स ना हो कंप्लीट। ओके। सो आई मेक श्योर दिस थिंग। सेकंडली आई मेक श्योर व्हेनेवर वी आर हैविंग फूड, वो टीवी ना देखे या कोई भी गैजेट ना करे, क्योंकि वंस इफ यू आर वाचिंग समथिंग, अगर हम लोग बहुत बड़ों की भी आदत होती है कि हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। इससे पहली बात तो ये एक हेल्थ टिप भी है, जब हम खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं ना, वी लूज ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग। हम या बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता हमने 3 चपाती खा ली, हम चौथी भी खा लेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो देखने में और समझने में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एनग्रोस हो जाता है, और वो या ट्रैक ही भूल जाते हैं, तो उससे हम ज्यादा खा लेते हैं। एट द सेम टाइम कहते हैं 32 बाइट्स या 36 बाइट्स होनी चाहिए, वो तो हम नहीं करते हैं। बट हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट हम 15-20 बाइट तो लें एक निवाले की जो हम खाते हैं, फॉर अ प्रॉपर गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। राइट। ये भी जब हम फोन देख रहे होते हैं हमें होता है जल्दी जल्दी खा लें बस। या तो ये चीज आई मेक श्योर कि हम ना मैं ना मेरा बेटा, हम घर पे जब खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो इवनिंग स्नैक्स हो चाहे डिनर हो, फोन गैजेट्स नहीं होने चाहिए। दैट्स द थिंग, एंड यस आई एनकरेज हिम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, क्योंकि ओके। मैं नहीं चाहती वो गैजेट्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट रहे, या क्योंकि गैजेट्स देखने में देखो आईज जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आई डोंट वांट के उसकी आईज इफेक्ट करें। सेकेंडली आई थिंक व्हेन यू गो फॉर outdoor activities, आप you come across with people, and then it is good for your body, फिजिकल ग्रोथ physical अच्छी हो growth as जाती है। well, yeah. या अब बात आती है इमोशनल नीड्स की, तो कभी कभी इंसान इमोशनली ब्रेक डाउन भी हो जाता है, उसको काफी चीजें नहीं समझ में आती, तो आप उन सब चीजों से कैसे टैकल करती हैं कि आप अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को फुलफिल करें, आप अपनी इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं? I know it's a very good question and very emotional as well. I am a very emotional person. But then the thing is it कि that जब आप अकेले होते हो ना और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप बहुत समझदार बन जाते हो, या ठीक है। एंड इट कम्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एज वेल। आई नो मे बी इट वुड साउंड वियर्ड, बट देन आपकी हॉबीज होती हैं। हॉबीज क्यों होती हैं इंसान की? जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, हम्म। जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है, वो आपकी हॉबीज बनती हैं, राइट। तो आई मेक श्योर दैट मेरे दिमाग में कुछ और ना चले, इसलिए आई मेक श्योर दैट आई हैव अलेक्सा, एंड आई ओके। कीप ऑन टेलिंग माई अलेक्सा ये वाला गाना, ये वाला गाना, ये वाला गाना। So it's like a music is a therapy to me. At the same time, I know driving. I go on long drives. And दैट्स whenever, नाइस। I mean, I share a very special bond with my son. He's just 8 plus, but to be honest with you, for me, he's my support system. He understands the day I'm feeling a bit low. He makes sure he comes to me, and he cuddles with me. He give me a strong hug. That क्या हुआ है आप? क्या हुआ है आपको? I don't know, and this is not. अब it's being वो अब 8.5 साल का हो गया है। I remember when he was like 2 months, 3 months old. बच्चों को पता नहीं कैसे पता होता, जिस दिन मैं बहुत लो होती थी ना, उस दिन ये मुझे परेशान नहीं करता। आई डोंट नो, इट इज कुदरती इज द वर्ड इन पंजाबी या एंड हिंदी, कि कुदरती होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक अटैचमेंट होती है। और मतलब मेरे बेटे को ना ये बचपन से समझ में आ गया था कि मेरी मम्मी को शायद मेरी ज़रूरत है। ही अंडरस्टैंड्स मी, ही मेक्स मी फील गुड। एंड यू नो व्हाट, एक होता है ना कि जब आप तैयार होते हो तो आपको लगता है दैट समवन सेज, इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं कि या आप मम्मा, आप तू बहुत अच्छी लग रही है, या यू आर लुकिंग गुड। सो माय हीरो इज माय सन। Even if I am dressing up or I do makeup for my video shoot, he makes sure he tells me, क्या बात है, ये तैयार किस लिए हुए हो आप? So the moment he says that, ना I feel so good, and I feel motivated, and I really feel very, I mean, I don't need anyone if I have him. And when I say that, I mean it. And I really want to give him that kind of a upbringing that, he respects every woman around. And I just want that he should never, जैसे कहते हैं ना, lose his innocence, the kind of या innocence he has या right now. So that's very nice and I hope he'll do that. अब बात आती है स्किन केयर पे, तो आप एक स्किन केयर के लिए कोई टिप्स ऐसी देना चाहती हैं, या आप होममेड स्किन केयर पे ज्यादा भरोसा करती हैं या फिर प्रोडक्ट्स पे? देखो, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट इज अ बैलेंस 50-50। ओके। मैं होममेड प्रोडक्ट्स भी यूज करती हूँ, प्लस बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई डू यूज लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज वेल। होम रेमेडीज पे मैं ज्यादा रिलाय करती हूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल लोग अंडर आई के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे अंडर आई के नीचे मतलब बहुत काले स्पॉट्स हैं या दे डोंट लुक गुड। तो मेरे पास एक रेमेडी है, होम रेमेडी, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल। थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी लो, हल्दी को तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लो, हल्का सा, काला नहीं करना है उसको, रोस्ट करना है। और उसको फिर आप एक बाउल में ले लीजिए, शहद मिला के एक पेस्ट बनाइए। यू कैन स्टोर दिस फॉर 3 days, यू कैन यूज इट फॉर 3 days, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर इफेक्टिवनेस कम हो जाती है उसकी। और अपने अंडर आई पे लगाइए, 15 मिनट लगाइए रात को सोने से पहले, वॉश योर फेस एंड स्लीप, एंड डू इट फॉर 21 days एंड सी द रिजल्ट योर सेल्फ। प्लस एक एक चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ मेरे मॉर्निंग और नाइट रूटीन में, रिलीजियसली ओके। रिलीजियसली करती हूँ। फेस वॉश यूज करना है, उसके बाद एक क्लिंजर लेना है माइल्ड सा, इट कैन बी एनी ब्रांड, आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स एनी ब्रांड, कोई भी क्लिंजर जो आपके पास है, महंगा सस्ता फर्क नहीं पड़ता। देन टोनर, दिन के टाइम में मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, लोग ये सोचते हैं, एक मिथ है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो ही हमको सनस्क्रीन लगानी है और गर्मियां हैं तो भी हमें लगानी है। नहीं, सनस्क्रीन हमें रोज लगानी है, विंटर्स हो चाहे समर्स हो, डजंट मैटर, पहली बात। और दूसरी ओके। बात, अगर आप घर पे भी हो आपको तब भी सनस्क्रीन लगानी है, बिकॉज इट्स गोइंग टू वर्क ऑन योर फेस एंड स्किन। एंड थर्डली, रात को ये जो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन है ये रिप्लेस हो जाता है, ओके। या तो सिर्फ मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम। ओके। बस दैट्स द थिंग विच आई फॉलो रिलीजियसली। एंड यस, एक चीज होम रेमेडी की, एक आइज रोलर सबके घर में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो amazon पे मिलता है प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी भर लीजिए, बस फ्रीज इट आउट। और मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें ना रोज पेटल्स डाल देती हूँ फ्रेश। ओके। एंड सुबह ब्रश करने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई जस्ट use that roll on my face like for 40 seconds, not more than that, and it will give you like result in 10 days। एक तो ये आपके फेस से, स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, और आपके स्किन ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, बहुत। आई गेस ये टिप्स, ये मैजिकल टिप्स हमारे लिसनर्स को काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। मैम, जाते जाते आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि लाइफ एक चैप्टर की तरह है, एक बुक की तरह है। वैसे ही मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि लाइफ इज़ लाइक अ कैनवस एंड यू हैव लॉट ऑफ कलर्स, यूज़ देम एंड ट्राई टू यूज़ द ब्राइटर वन्स, ठीक है? हल्के कलर्स मत यूज़ करो, क्योंकि जो आपकी सोच होती है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, और वही आप जैसा इंसान सोचता है वैसे ही आपके साथ होता है। So try to use all the colors which are there in your box. Paint your canvas bright. Think positive, be positive, and life will give you lot of surprises with goods. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और My आपकी pleasure. बातों ने मुझे तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। आई गेस हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी इससे काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केजेड टॉक्स। ऐसे ही और पॉडकास्ट सीरीज के लिए बने रहे हमारे साथ केजेड प्रोडक्शन से। थैंक यू।